Good afternoon students, welcome to today's video lecture. Today we will be starting with a new chapter, chapter number 10, straight lines, which is very interesting and you can say my favorite chapter, and it is also somewhat tough and lengthy. तो आपको काफी अच्छे तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा और डेली रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है? So let us start with the new chapter, chapter number 10, which is straight lines. और इसी के लिए मैंने इसका आपको बेसिक अच्छा भी जाए इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री खत्म किया है. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट फॉर स्ट्रेट लाइंस इज R1. R1 का मतलब आपको पता है वन डायमेंशन को नंबर लाइन भी बोलते हैं. कितने रियल नंबर्स होते हैं? देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स and there are infinite points and there are infinite points on a line. There exists one correspondence. There exists one correspondence between infinite real numbers. There exists one correspondence between infinite real numbers and infinite points. उसका मतलब क्या? Each real number will be represented by a point on the line, and second point, every point corresponds to a real number. उसका मतलब every point represents a unique real number. Every point on a line represents a unique real number. और दूसरा, every real number will be represented by a point. By a point on a line. ठीक है, by a point on the line. और इसके बाद तो ये 1D जो है, वन डायमेंशन या R1 या उसको नंबर लाइन बोलते हैं, उसको काफी जगह पे कैसे डिनोट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ. सपोज द पॉइंट इज, नोट करके आ जाता है P of x का मतलब क्या होता है? P of x means point P corresponds to, okay, we can write point P corresponds to real number x. और R1 क्या होता है? R1 या वन डायमेंशन इज कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स P, और वो R1 होता है. सो R1 जो वन डायमेंशन है, R1 which is one dimension is a set of all the points P of x. Is a set of all the points P of x where x is a real number. ठीक है, ये हो गया हमारा R1 का डेफिनेशन. उसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स है. देयर एक्सिस्ट one correspondence between the infinite points and infinite real numbers. Every point corresponds to a unique real number, and every point represents a unique real number, and every real number is represented by a unique point. So P of x means point P corresponds to real number x, और R1 जो one dimension है is collection of all the points like P of x where x belongs to R. Right? So ये हो गया हमारा वन डायमेंशन इज R1, और उसको मैंने क्या बोला? उसको मैंने बोला नंबर लाइन, तो वो हो गया मेरा P of x means all the points like P which represents corresponds to real number x. Suppose हमारे पास है, suppose we are having let A of A B corresponds to theta, B and O corresponds to 0 are 3 points of R1 or one dimension. Here O0 means point O represents point O represents 0 on the number line. ठीक है, और अब मैं कंसीडर करता हूं ये लाइन का O0 means O represents 0 on the number
कैपिटल A, पॉइंट कैपिटल A रिप्रेजेंट्स छोटा रियल नंबर A एंड पॉइंट कैपिटल B रिप्रेजेंट्स छोटा रियल नंबर B। और मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फॉर A of A, B of B which belong to R1, मतलब वो पॉइंट्स ऑफ R1 है, A is a real number and B is also a real number। अब सपोज उसका ऐसा एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, पॉइंट O रिप्रेजेंट्स रियल नंबर 0। फिर सपोज पॉइंट A इधर है, पॉइंट A रिप्रेजेंट्स छोटा रियल नंबर A एंड पॉइंट B it corresponds to or represents छोटा रियल नंबर B। Here point A is on right side of point O, उसका मतलब और O किसको रिप्रेजेंट करता है 0 को, सो A क्या हो गया, therefore so A has to be greater than 0। ये पॉइंट पहला आपको आ गया। फिर दूसरा कि here point B किधर है, here point B is on left side of point O, उसका मतलब सो क्या होना चाहिए, उसका मतलब B is on the left side of O, उसका मतलब जो रियल नंबर B है is on the left side of 0। 0 के लेफ्ट में सारे नंबर्स कैसे होते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स, सो B has to be less than 0, सो B less than 0। आप समझ गए मैंने क्या बोला, पॉइंट A is on the right side of O, तो उसका मतलब रियल नंबर A is on the right side of 0। 0 के राइट साइड में कैसे रियल नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन पॉजिटिव, सो A greater than 0। पॉइंट B is on the left side of O, तो उसका मतलब छोटा रियल नंबर B is on the left side of 0। 0 के लेफ्ट साइड में कैसे रियल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव, दैट्स व्हाई B is less than 0। ये आपको पता चल गया। फिर डिस्टेंस फार्मूला इन R1, डिस्टेंस फार्मूला इन R1, डिस्टेंस फार्मूला इन R1, let two points R1, let 2 points of R1 be A of A, comma B of B। Therefore, distance between A and B is equal to distance between points A and B। कैसे डिनोट करेंगे, distance between points A, B is equal to distance between AB, या simply हम AB लिखेंगे और वो AB, I'll prefer the last one। So distance between AB is modulus of the difference between the two corresponding numbers, मतलब distance between AB क्या होगा, therefore distance between points A and B is equal to distance AB is equal to modulus of A किसको correspond करता है, छोटा A, वो लिखने का माइनस B किसको रिप्रेजेंट करता है, छोटा B। So distance between A and B is distance between the two points A of A and B of B is given by modulus of A minus B। हाँ, इधर A और B रियल नंबर्स हैं, A is a real number, B is a real number। तो let me give you an example। let example consider करो आप, let A of 3, B of 2 are points of R1, are points of R1 या वन डायमेंशन। तो उसका मतलब A represents real number 3, B represents real number 2। So therefore distance between AB is distance is modulus of A किसको रिप्रेजेंट करता है 3, so 3 minus B किसको रिप्रेजेंट करता है 2, so modulus of 3 minus 2 which is modulus of 1 which is 1। ठीक है, फिर distance between suppose दूसरा एक एग्जांपल, ज्यादा डिटेल में I will not give only one example and I will not give only your one example, two examples are enough। let A correspond to -3, B correspond to -4 are points, let B points of R1 B points, तो A of 3 रखते हैं, A of 3, let A of 3, B of -4 are points of R1, are points of R1 मतलब one direction। So therefore distance between two points AB is distance AB is equal to modulus of A किसको रिप्रेजेंट करता है 3 minus B किसको रिप्रेजेंट करता है 4, so 3 minus of -4 modulus तो वो कितना हो जाएगा 3 minus plus 4, so modulus of 3 plus 4 is modulus of 7 which is 7। so therefore इधर AB आया 7
और इधर AB आया 1, इधर AB आया 1, इधर AB आया 1. So that is, you can say the basic knowledge of R1 which is one dimension. फिर उसके बाद क्या था? 2 dimension. 2 dimension को क्या बोलते थे? 2D R2 मतलब XY plane. 3D में हमने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में किया था. So give the heading 2 dimension is R2 या 2D या XY plane. Flat surface. Any flat surface is 2 dimension. In R2 there are two mutually perpendicular lines. There are two mutually perpendicular lines, namely x-axis and y-axis. Namely x-axis and y-axis. फिर क्या होता है? x-axis and y-axis meet at x-axis and y-axis. जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको ओरिजिन को कहते हैं. मीट एट ओरिजिन एट परपेंडिकुलर है इसलिए एट राइट एंगल्स. एक बार वापस लिख देता हूं, एट राइट एंगल्स. ठीक है, ओके. फिर एक्स एक्सिस से लाइन होती है. एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन. और वाई एक्सिस कैसी लाइन होती है? वर्टिकल लाइन होती है. अब इस चैप्टर में वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में काफी डिटेल में हम करेंगे या लिखेंगे. तो ये याद रखो, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस. और दूसरा पॉइंट x axis intersection हो तो ठीक है. फिर याद रखो x axis is a horizontal line. x axis is a horizontal line. और दूसरा y axis is a vertical line. फिर आपको पता है any point in 2D, any point in 2 dimension, any point in R2 or 2 dimension is given by P of xy is given by P of xy. तो उसमें x को क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट ऑफ P, एब्सिसा ऑफ P. और वो क्या था? याद है हमने ये पूरा डिटेल में किया था इन 3D में. हमने ये पूरा अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था. एनी पॉइंट इन R2 और 2D is given by P of xy. Here for P of xy, for P of xy, x को क्या बोलते हैं? x को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ P. x को बोलते हैं व्हाट इज x को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ P. उसको बोलते हैं एब्सिसा ऑफ P. उसको एक्चुअली क्या है? व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? इट इज perpendicular distance. It is perpendicular distance of P from y-axis given the sign of, they are measured along, you can say given sign of x-axis along which it is measured. It is actually perpendicular distance. मैं आपको एक बार लिख देता हूँ. What is the x coordinate? X coordinate is for P of xy, sorry, दोनों चीजें यहाँ पे आ जानी चाहिए. For P of xy, x क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ P. उसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा ऑफ P. और वो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P from, very very important, y axis. फिर उसको साइन किसका देते हैं? गिवन साइन ऑफ x axis along which it is measured, along which it is measured. फिर जो y है, y को क्या बोलते हैं? y कोऑर्डिनेट ऑफ P. इसको और आगे क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या था आपको याद है? मैंने आपको बताया था ऑर्डिनेट ऑफ P. तो ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P from, क्या याद रखने का? x एक्सिस पर गिवन द साइन ऑफ y एक्सिस, गिवन साइन ऑफ y axis
along which it is measured, along which it is measured। ठीक है, ये 3D में काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। अब आपको याद है x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, y एक्सिस वर्टिकल लाइन, दोनों परपेंडिकुलर, दोनों कहां पे मिलते हैं? ओरिजिन। तो ओरिजिन x एक्सिस पे भी है, y एक्सिस पे भी है। तो ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होता है? 0। ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होगा? 0। आप समझ क्या कह रहा हूं कि ओरिजिन नोट करके, ओके पहले एक नोट लिखता हूं कि ओरिजिन इज ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसके लिए फॉर ओरिजिन, फॉर OXY, फॉर ओरिजिन OXY, आप समझ जाना, फॉर ओरिजिन OXY। अब देखो ओरिजिन किस पे है? x एक्सिस, ओरिजिन y एक्सिस पे। x कोऑर्डिनेट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पे। अब ओरिजिन y एक्सिस पे है, ओरिजिन y एक्सिस पे है, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होगा? 0। तो x कोऑर्डिनेट 0। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। y कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम x एक्सिस। पर ओरिजिन तो x एक्सिस पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 0। इसलिए उसका y कोऑर्डिनेट 0। सो x is 0 and y is equal to 0। Therefore origin is O 0 0 in R2 और 2D। ये आपको याद है, ये तो आपको पता ही है। ओरिजिन x एक्सिस पे भी है, y एक्सिस पे भी है। वो y एक्सिस पे है, इसलिए उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 0, इसलिए x कोऑर्डिनेट 0। वो x एक्सिस पे है, इसलिए ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस भी 0, इसलिए उसका y कोऑर्डिनेट 0। इसलिए ओरिजिन इज O 0 0 इन R2 और 2D। ये आपको पता है, पर कैसे आया वो मैंने आपको बताया। अब देखो जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, that divide the 2D or x axis or y axis, they are perpendicular to each other। x axis and y axis are perpendicular to each other, so x dash y dash, मैंने क्या बोला? x axis is horizontal, y axis is vertical, they are perpendicular to each other, इसलिए perpendicular, they meet at origin O और उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया 0 0। दूसरा OX जो है पॉजिटिव x एक्सिस है, OX dash is negative x axis, OY is positive y axis, OY dash is negative y axis, OX को बोलते हैं पॉजिटिव। ओके सिंपल। अब this x axis and y axis, x axis and y axis divide x axis or y axis that divide the xy plane or 2D in 4 quadrants, in 4 quadrants। तो आपको पता ही है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एनी पॉइंट इन 2D इज xy, एनी पॉइंट इन 2D इज xy, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, फिर एनी पॉइंट इन 2D इज xy, सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। और कैसे याद रखेगा? मैंने क्या बोला? OX इज पॉजिटिव x एक्सिस, OY इज पॉजिटिव y एक्सिस, इसलिए x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में इधर नेगेटिव x एक्सिस आता है, इसलिए x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, और पॉजिटिव y एक्सिस आता है, इसलिए y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में OX dash नेगेटिव x एक्सिस आता है, इसलिए x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हुए, नेगेटिव y एक्सिस आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट xy होता है तो उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव x एक्सिस आता है, इसलिए x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और नेगेटिव y एक्सिस आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए उसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ये आपको याद रखना है कि the x axis and y axis divide, x axis and y axis divide the xy plane in 4 equal parts, each part is called a quadrant। वो आपको याद रखना है कि x axis and y axis divide xy plane or divide xy plane or R2 or 2D in 4 equal parts। Each part is called a quadrant, each part is called क्वाड्रेंट। ये तो आपको पता ही है। और फिर आपको रिकॉल करवा देता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लाइक P of xy। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इज set of points P of xy
जहां पे x is पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट is पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट is also पॉजिटिव। फिर सेकंड जो क्वाड्रेंट है, second quadrant is set of points, is a collection of points p of xy where x coordinate is negative and y coordinate is positive. Third quadrant में क्या होगा, x coordinate is negative, y coordinate is negative and fourth quadrant में x coordinate is positive, y coordinate is negative। तो आपको पता ही है, वो लिख लो। फिर third quadrant is collection of points like p of xy where x is negative and y is negative, means x coordinate be negative or y coordinate be negative। Fourth quadrant is collection of points like p of xy where x coordinate is positive, y coordinate is negative। और हाँ, आपको याद रखना है कि here ये जो मैंने चार क्वाड्रेंट के बारे में बात की, x और y रियल नंबर्स होंगे। For आगे जो मैंने अभी इधर डिस्कशन किया, for p of xy, x is a real number and y is a real number। ये आपको पता ही है, that's understood, whether to write or don't write it's fine। और मैं आपको बताता हूँ x एक्सिस के बारे में भी थोड़ा लिख देते हैं, जो हमने ऑलरेडी लिखा था। What is x axis? What is x axis? X axis is a horizontal line, it is perpendicular to y axis। So can I say what is x axis? तो ये हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज मैंने आपको दे दिया। नाउ लेट अस राइट समथिंग अबाउट x axis and y axis। x axis क्या है? इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर टू y axis। फिर दूसरा क्या है? एनी पॉइंट ऑन x axis के बारे में जो भी पॉइंट्स आपको पता है वो लिख दो, रिवाइज कर लो मेरे साथ। इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन perpendicular to y axis। फिर any point on x axis, obviously in R2 is p of x0 is given by p of x0। उसका मतलब y coordinate of any point on y coordinate of all the points on x axis is 0। को याद रखने का, y coordinate of all the points and any point on x axis is 0। ये आपको याद रखना है। फिर ये जो मैं चार पॉइंट्स लिख रहा हूँ उसी में थोड़ा चेंज करके आपको y एक्सिस के बारे में नॉलेज मिल जाएगा। तो इसका मतलब so y coordinate of any point, y coordinate of any point on x axis is 0। ये आपको याद हो गया। दूसरा, what is x axis? x axis is collection of points like p of x0। क्यों? ये सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए और x कोऑर्डिनेट 0 भी हो सकता है, तो ओरिजिन हो जाएगा। और x is any real number। ये हो गया नॉलेज हमारा x axis के बारे में। यस, परफेक्ट। अब x axis के बारे में हो गया। फिर ओके, स्टिल दे हैव गिवन द सेम थिंग। ओके, तो y एक्सिस के बारे में लिखने के बाद थोड़ा वापस वही पॉइंट्स आएंगे। व्हाट इज y एक्सिस? y एक्सिस अ वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस को लिखो सेम टाइम। इट इज, इसका पहला पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट करो। y एक्सिस इट इज अ वर्टिकल लाइन, इसको परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ये चैप्टर आपको मेरे साथ ऑन डेली बेसिस तो रिवाइज करना भी पड़ेगा और साथ में इसको और एक राउंड आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपको इसमें बहुत मजा आएगा। हाँ, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या था? p of x0। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज गिवन बाय क्या है? इज गिवन बाय, ये आपको याद रखना है, p of 0y। ये आपको याद रखना है, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस p of x0, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज p of 0y। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि so x coordinate of every point on y axis is 0। so x coordinate of every point on y axis is 0। तो उसका मतलब can I say y axis is a line
So what is y-axis? It is a line. Y-axis is a line, and it is collection of points like p of 0y. It is collection of points like p of 0y where y is the real number. अगर y 0 होगा तो वो ओरिजिन हो जाएगा. ओरिजिन y-axis पे आता है. So no need to worry about it. ठीक है, ये हो गया x-axis और y-axis के बारे में. फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? I believe distance formula in R2 होगा. नेक्स्ट पॉइंट होगा डिस्टेंस फॉर्मूला इन R2, जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला इन R1 किया था वैसे. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस फॉर्मूला इन R2 और 2 dimension. That is understood. It is x y plane. Let ax1 y1, let ax1 y1, let ax1 y1. It's fine. p और q रखने को भी चलेगा, a और b रखने को भी चलेगा. Let a x1 y1, b x2 y2, b 2 points of r1, b 2 points of r2 और 2d. तो distance between a and b, तो distance between a and b which is AB, ये याद रखने का. distance between, same logic, therefore distance between points A and B, कभी-कभी ऐसे पूछते हैं ओकेजन में, तो अब से खाली AB, and I prefer this one only. तो वो AB कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ, वो आपको याद रखना है. पहला फॉर्मूला AB is square root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. ये आपको याद रखना है. ठीक है, तो आपको क्या रखना है? therefore फर्स्ट टाइप में आप क्या लिख सकते हो? AB is for, तो पहला पॉइंट क्या? for a x1 y1, for a x1 y1 comma b x2 y2. क्या रखेगा? डिस्टेंस AB is square root of x1 minus x2 the whole square is square root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. That is, you can also write AB is square root of x2 minus x1 the whole square. Difference is same order लेना है. x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Here, okay, ये हो गया. अब अगर मैं AB, वापस एक बार, A क्या है? x1 y1, B क्या है? x2 y2. अगर मैं AB रखता हूँ x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square, तो AB square क्या होगा? x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. ठीक है, ये आपको याद रखने का. अगर मैं रखता हूँ AB x square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो फिर उसके लिए क्या आएगा? for अगर हमारा डिस्टेंस AB A is x1 y1, B is x2 y2, इसमें चेंज नहीं करना है. तो अगर मैं AB रखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, तो AB square तब क्या है? x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ओके, अब अगर दो केस हो सकते हैं, ये दोनों पॉइंट्स अलग भी हो सकते हैं, ये दोनों पॉइंट्स सेम भी हो सकते हैं. तो लेट फॉर a x1 y1 and b x2 y2, let a is equal to b. अगर दो पॉइंट्स इक्वल, ऑब्वियसली उनके x कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएंगे. therefore x1 is equal to x2 and उसके y कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल हो जाएंगे. so x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2 for a comma b, for points a is equal to b, क्योंकि दोनों इक्वल पॉइंट्स हैं, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट भी सेम, y कोऑर्डिनेट भी सेम, तो ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा? 0. उनके बीच में डिस्टेंस 0 आएगा. so therefore distance AB is 0. ये याद रखने का. तो कौन सा पार्ट याद रखने का? कि if, therefore if distance AB is 0, then 2 points A is equal to B. और दूसरा, if A is equal to B
then distance between points A and B is 0. वाइस वर्सा दोनों ट्रू है, डबल इंप्लीकेशन में नहीं दे रहा हूं, ये दोनों याद रखना है। और दूसरा, let for A x1 y1 and B x2 y2, सपोज ये दोनों पॉइंट्स अलग हैं, let A not equal to, let A not equal to, आप तो बोलेंगे तो x1 तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स अलग, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स अलग, ऐसे नहीं। अगर दो पॉइंट्स अलग हैं तो उनके x कोऑर्डिनेट्स इक्वल अगर होंगे तो y कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे, अगर उनके y कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे तो x कोऑर्डिनेट अलग होने चाहिए, x कोऑर्डिनेट्स अलग y कोऑर्डिनेट्स अलग। बस इतना याद रखना है कि दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, दोनों पॉइंट्स कैसे डिस्टिंक्ट। तो आपको याद रखना है कि जो डिस्टेंस AB है, डिस्टेंस AB होगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है और दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं है तो यहां पे डिस्टेंस AB कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो याद रखिएगा, here distance AB is greater than 0 for A not equal to B। तो आपसे याद रखिएगा, therefore अगर distance between the two points A is positive then they are not equal। और दूसरा, if the two points are distinct, if two points A and B are distinct, A और B distinct points है, then distance between A and B is positive। distance कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नोट करके याद रखिएगा। for A x1 y1 comma B x2 y2 belonging to R1, the points in R1, can I write AB is always greater than equal to 0? So therefore AB greater than distance between AB, okay, distance between AB, which is AB, is always greater than equal to 0. So distance AB which is equal to AB less than 0 is false. Is false, not possible. Distance AB less than 0 is not possible. ये याद रखने का। और अगर distance between A and B 0 तो इक्वल पॉइंट्स सेम पॉइंट्स हो जाएंगे, और अगर दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस A और B के बीच का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, जो मैं आपको दे चुका हूं। नाउ गिव दैट डिस्टेंस फॉर्मूला इन R2 हो गया। ओके, नाउ 10th में आपने किया था वो फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन R2 और 2, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन R2 और 2, ये आपको याद रखना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन R2 और 2। सपोज A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3, A x2 y1 B x2 y2 C x3 y3 are three distinct non-collinear points, are three distinct non-collinear points, are three distinct non-collinear points in R2 और 2D। थ्री डिस्टिंक्ट, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते तो ट्रायंगल बनने का चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। पर ये तीनों पॉइंट्स मैंने पहले से बता दिया कैसे हैं, नॉन कोलिनियर। सो ट्रायंगल ABC इज फॉर्म, सो दैट ट्रायंगल ABC विल ऑक्यूपाई सम एरिया, तो उसके लिए कोई फार्मूला होगा, therefore so triangle ABC is formed, so therefore triangle ABC is formed। तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ triangle ABC is half into is delta, is given by delta which is equal to half into magnitude of D, half into magnitude of D। here D is, D का वैल्यू कैसे निकालेगा, here D is x1 into A क्या है x1 y1, B क्या है x2 y2, C क्या है x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर, सो ट्रायंगल ABC इज फॉर्म। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज डेल्टा which is half into magnitude of D, जहां पे D is x1 into D is, here D is x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। एक बार वापस लिखते हैं, फॉर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, फॉर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 forming
triangle ABC, area of triangle ABC क्या होगा डेल्टा which is half into modulus of d, और वो d कैसे आएगा x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1। ये से आपको याद रखना है, पूरा चैप्टर फॉर्मूला पे बेस्ड है, काफी थियरी है। area of triangle ABC is delta which is equal to half into magnitude of d, here d क्या है x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। सही है, x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। ये फॉर्मूला हम प्रेफर करेंगे, नोट करके याद रखने का। समटाइम्स काफी बार काफी बुक्स में ये भी दिया होता है कि फॉर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स we will prefer this formula only, half into ये वाला फॉर्मूला ही मैं प्रेफर करूंगा d के लिए, ये वाला फॉर्मूला। पर दूसरी बुक्स में मे भी टेस्ट साइड में आपने दिया हो फॉर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स a x1 y1 b x2 y2 comma and c x3 y3 and c x3 y3 फॉर्मिंग नॉन कोलिनियर है, इसलिए ट्रायंगल बनाएंगे फॉर्मिंग ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाफ इनटू इज डेल्टा इज हाफ इनटू मॉड d, और उसमें d इधर क्या है, अब देखो x1 इनटू है ना, इधर x1 इनटू y2 minus y3 plus x2 इनटू y3 minus y1 plus x3 इनटू y1 minus y2। इधर क्या करो, x की जगह y लिखो और y की जगह x लिखो, और कुछ नहीं। हियर d क्या होगा, हियर d is y1 into x2 minus x3 plus y2 into x3 minus x1 plus y3 into x1 minus x2। We will refer the first one now, एक बार आपस में लिखो, that is area of triangle ABC का सिंबल क्या है डेल्टा, हाफ into modulus of d। here d क्या है, here d है y1 into x2 minus x3, साइक्लिक ऑर्डर 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3, अब देखो साइक्लिक ऑर्डर है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 बस y1 into x2 minus x3 plus y2 into 2 3 1 x आएगा, x3 minus x1 plus क्या आना चाहिए y3 into x1 minus x2। एरिया ऑफ ट्रायंगल फिनिश, पहला फॉर्मूला हो गया जो आज आपने नया सीखा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज, ऐसे बहुत सारे थियरी आएंगे, ये सारे थियरी विद अंडरस्टैंडिंग आपको याद हो जानी चाहिए, और ये सारी थियरी अगर आपको लर्न है तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और अगर आप लोगों ने ये नहीं किया अच्छे तरीके से तो फिर इट विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, मतलब ये चैप्टर करने में कोई मजा आएगा नहीं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देखिएगा। अब अगर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, पर अगर ए बी और सी नॉन कोलिनियर नहीं है, अगर वो कोलिनियर है तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए अलग से पॉइंट एट डिस्टेंस फॉर्मूला से तो हम कर ही सकते हैं, पर एक नया शॉर्टकट है आपके लिए। और लेट ax1 y1 bx2 y2 cx3 y3, let ax1 y1 bx2 y2 cx3 y3 ये three distinct collinear points with distinct collinear points of two dimension। और अगर वो collinear है तो obviously since they are collinear, no triangle ABC is formed, no triangle ABC is formed, so therefore area of triangle ABC zero हम ले सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या था, so delta will be zero, so therefore half into magnitude of D will be zero, therefore modulus of D will be zero, therefore D will be zero। ये zero आया उसका मतलब क्या था वो D, therefore पहला वाला फॉर्मूला x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1, sorry, therefore D क्या था फॉर्मूला लिखना है, therefore x1 into y2 minus y3 plus
x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 will be 0 is equal to 0 आएगा। ये आपको याद रखना है। अगर ax y1 bx y2 से x की वैल्यू कोलिनियर है तो d 0 होगा। उसका मतलब x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 is 0। ये आपको याद रखना है। दो पॉइंट्स अगर आपको ये पॉइंट्स याद रह जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये चैप्टर आ जाएगा। इसी चीज को मैं समराइज कर देता हूं। ax1 y1 bx2 y2 cx3 y3 दो पॉइंट्स कैसे याद रखेंगे? if ax1 y1 bx2 y2 cx3 y3 are three distinct collinear points are three distinct collinear points then of R2 obviously are three distinct collinear points of two dimension or R2 तो क्या आएगा? then area वाला नहीं तो मैंने क्या लिखा? then therefore no triangle ABC is formed so therefore area of triangle ABC is 0 therefore delta is 0 half into mod b 0 so mod b 0 d 0 और d आपको पता है ये तो आपको सीधा याद रखना है collinear then b is 0 are three non collinear points then आपको याद रखना है d is 0 therefore वो d क्या है? x1 into y2 minus y3 therefore x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 is 0 is equal to 0। ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ गए? एक बार वापस याद रखो ax y1 bx y2 cx y3 ax y1 bx y2 cx y3 are three distinct collinear points then d is 0 therefore क्या याद रखने का? x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 ये वैल्यू 0 आने चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा if अगर d0 आता है for ax1 y1 bx2 y2 for three distinct points ax1 y1 bx2 y2 for ax1 y1 for three distinct points मैंने collinear नहीं लिखा for three distinct points a x1 y1 b x2 y2 c x3 y2 of two dimension R2 suppose मैं रखता हूं d हमारा क्या है? x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 if d is not equal to अगर d 0 आया if d is 0 that is if d is 0 that is x1 into y2 minus y3 इसका वैल्यू निकालेगा x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 अगर ये 0 आया then points ax1 y1 bx2 y2 bx2 y2 c x3 y3 are collinear are three distinct collinear points अगर d0 नहीं आएगा तो वो collinear नहीं होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे? वो नॉन collinear होंगे तो वो फॉर्म करेंगे ट्रायंगल ABC और उसका एरिया होगा half into mod b। तो लेट मी सॉल्व वन क्वेश्चन तो आपको इसका आइडिया आ जाएगा ओके। हमको चेक करना है कि फाइंड चेक इफ ओके क्वेश्चन है चेक आर points A 4 4 A 4 4 B 3 minus 2 B 3 minus 2 C minus 3 16 कोलिनियर क्वेश्चन है क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है? इफ नॉट अगर वो कोलिनियर नहीं है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा इफ नॉट देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC then find area of triangle ABC ये क्वेश्चन है
अब आप समझो, डायरेक्टली शुरू नहीं कर देने का कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज हाफ इनटू व्हाट डी इज करके। पहले क्या पूछा है कि ये कोलिनियर है या नहीं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में मैं करूंगा लेट ए क्या है 4 4, तो a x1 y1 सोचने का, b क्या है 3 -2 उसको क्या सोचने का, b x2 y2, और फिर आपको पता है वो c वो क्या है -3 16 तो उसको क्या सोचेंगे c x3 y3। अब इसके पहले मैंने थ्योरी क्या लिखा है, अगर d 0 है मतलब x1 * y2 - y3 x2 * y3 - y2 x3 * y1 - y2 0 है तो वो कोलिनियर। अगर कोलिनियर है तो इफ नॉट का पहले चेक करना है कोलिनियर है या नहीं। अगर कोलिनियर है तो हम लिखेंगे कोलिनियर है, इसलिए नो ट्रायंगल ABC इज फॉर्म, सो नो क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द एरिया। इफ नॉट, अगर वो कोलिनियर नहीं है मतलब नॉन कोलिनियर, तो ये नॉन कोलिनियर हो गए तो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो उसका एरिया होगा। तो सबसे पहले यहां पे एक x1 y1 ये क्या है 4 4 4 मैंने रखा है a x1 y1, b 3 - 2 उसको मैंने रखा है x2 y2, c -3 16 उसको मैंने रखा है c x3 y3। तो b का वैल्यू निकालो, b क्या है इधर, b का वैल्यू d क्या होता है x1 * d क्या है x1 * d2, d का वैल्यू निकालो, d इज x1 * y2 - y3 plus x2 * y3 - y1 plus x3 * y1 - y2। तो क्या होगा, x1 क्या है, x1 is 4 * y2 - y3 मतलब -2 - 16, पूरा कैलकुलेशन वाला सब कॉपी करोगे तो कुछ नहीं आएगा, 3 * y3 - y1 6 - 4 plus x3 वो है -3 * y1 - y2 मतलब 4 minus of minus मतलब 4 plus 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 * -16 - 2 is -18 plus 3 * 60 - 4 is 12 plus यहाँ पे आएगा -3 * 12 4 plus 2 is 6। तो ये कितना आएगा -72 plus 12 is 36 plus यहाँ पे आएगा 18 so -72 plus 36 यहाँ पे आया -72 plus 36 minus 18 -72 plus -18 कितना होता है -90 -90 plus 36 is -54 d आता है -54। तो यहाँ पे d का वैल्यू कितना आया 0 नहीं आया। d अगर 0 आता तो कोलिनियर, अगर d का वैल्यू 0 नहीं आएगा दैट्स व्हाई d क्या हो गया नॉन कोलिनियर। हियर d इज फॉर एग्जांपल लिखने का therefore d is equal to -54, therefore as d is not equal to 0, as d is not equal to 0, a points ABC are non-collinear, points A 4 4, B 3 -2 और C -3 16 and C -3 16 are non-collinear। और नॉन कोलिनियर है उसका मतलब क्या, ट्रायंगल एबीसी फॉर्म तो उसका एरिया क्या होता है हाफ इनटू व्हाट डी, जहां पे इनको यही है तो टेंशन नहीं लेनी, कैसा है डी इधर लिखो हमेशा। ट्रायंगल एबीसी फॉर्म, सो ट्रायंगल एबीसी इज फॉर्म और नॉन कोलिनियर है इसके लिए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज डेल्टा which is half into modulus of d which is half into modulus of d कितना है d is -54, so modulus of d modulus of -54 is 54। एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता, d का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, दैट्स व्हाई मॉडुलस ऑफ d देते हैं। इसलिए जब ये फार्मूला मैंने दिया तब आपको मैंने कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया। हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ -54 बिकॉज़ d कितना है -54, so कितना आएगा हाफ इनटू 54 which is 27। therefore area of triangle ABC formula नहीं delta is half into what is 27 square units, square units। this is a one mark question, find the area of triangle ABC। if possible ऐसा करके आ सकता है, find the area of ट्रायंगल ABC ऐसे करके ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। और लीनियर पॉइंट्स d0 आता है क्या है, अदरवाइज कंटिन्यू
now पॉइंट्स गिवन। ओके, ये मैंने बता दिया कि 3 पॉइंट्स कैसे हैं, मैंने बता दिया कि 3 पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर। तो मैंने डी का वैल्यू निकाला और डी नॉट इक्वल टू 0 आया। नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन कोलिनियर। तो ट्रायंगल एबीसी फॉर्म, सो ए का ट्रायंगल एबीसी मिल गया, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ और डी, और आपका आ गया आंसर। अब अगर क्वेश्चन है, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कि आर पॉइंट्स ए आर your points question one are points a 1 1 sorry a minus 1 b 2 1 c 4 5 c 4 5 collinear or not collinear or not collinear or not collinear। डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं करना है, डिस्टेंस फार्मूला से हम कर सकते हैं ab निकालो bc निकालो AB निकालो, BC निकालो, AC निकालो, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? लीनियर। पर वैसे नहीं करना है, हमको D का यूज करना है। सो सॉल्यूशन में पहले क्या करें? लेट A 1 - 1 आप लिखो A x1 y1, वैसे ही करो B 2 1 B कितना आएगा? x2 y2, C क्या दिया है? 4 5, so that you take as C x3 y3। फिर आप D निकालो, D का वैल्यू क्या था? D मैं इधर लिखता हूं, D क्या था? D को याद करो, इक्वल करो x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। निकालो ये वैल्यूज। तो D क्या आएगा? x1 कितना है? 1 into y2 minus y1 मतलब 1 minus 5 plus x2 कितना है? 2 into y3 minus y1 मतलब 5 minus of minus 1 minus minus plus हो जाएगा। so 5 minus 1 मतलब 5 plus 1 plus x3 कितना है? plus 4 into y1 minus y2 मतलब minus 1 minus of 1। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? अगर d का वैल्यू 0 आया तो वो बोलेंगे ठीक है 1 into minus 4 plus 2 into 5 plus 1 6 plus 4 into minus 1 minus 2 is minus 2। so d कितना आएगा? minus 4 plus 6 2 is 12 minus 8। ओके 12, तो d 0 आए, तो d 0 आता है, that's why these 3 points are collinear। a 1 minus 1 b 2 1 c 4 5 are कोलिनियर। मुझे नहीं लगता आपको डाउट होना चाहिए। अगर नॉन कोलिनियर होता तो d का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आता, तो एरिया तो ट्रायंगल एबीसी कैसे हो जाते? नॉन कोलिनियर so they will form triangle ABC। so triangle ABC will occupy some space, so it will be having some area। so area of triangle ABC का हम क्या लेते हैं? हाफ इनटू mod d डेल्टा, और हाफ इनटू d का जो भी वैल्यू है उसका मॉड्यूलस, और d यहां कुछ भी हो सकता है। 0 है तो कोलिनियर पॉइंट से, बट d अगर नॉन कोलिनियर है तो d पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए नॉट नेगेटिव। सो दैट फिनिशेस द टॉपिक ऑफ, यू कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC using half into mod d वाला फॉर्मूला and same collinearity of the points ax to y1 bx to y2 cx3 y3। now division of line segment AB by point P in R2 or 2D। division of a line segment, heading है division of line segment। okay, तो आपको याद है कैसे करना है? कि let कैसे याद रखना है? let A, B be two distinct points in two dimension of 2D or R2। two distinct points है तो एक लाइन फॉर्म करेंगे, तो लाइन A इस फॉर्म। सपोज लाइन पे एक तीसरा पॉइंट है P which is not equal to A not equal to B, तो आप ऐसा लिखो, कि just write this here। so two distinct points determine a line, so line AB is formed, so line AB is formed। this we have done in lower standards। let
तीसरा पॉइंट, लेट पॉइंट P belong to line AB. Let point P belong to line AB. मतलब P is a point on line AB other than A and B where P is not equal to A, P is not equal to A. So यहाँ पे P is not equal to A, not equal to B. So यहाँ पे हमारे पास क्या है? P, so here P belongs to, P is a point which belongs to line AB and there are three distinct points. So P is not equal to A, not equal to B. तो आपको पता है तीन केसेस आएंगे. Here first case क्या है? First case will be A dash, P dash, B. First case will be A dash, P dash, B. है मतलब A और B के बिटवीन में कौन आएगा? A और B के बिटवीन में P आएगा. सेकंड केस क्या आएगा? P can be before A, P dash, A dash, P. This we have already done in 3D. P dash, A dash, B. और थर्ड केस क्या आएगा? A dash, B dash, B. The third case will be A dash, B dash, B. Okay, the third case will be A dash, B dash, P. मतलब B is after point, P is point after point P. मतलब पहला केस A dash, B dash, B. उसका मतलब P is between A and B. P dash, B dash, B. मतलब P is before point A. Third case A dash, B dash, B का मतलब क्या? P is after point P. Okay. अब दो केस हो जाएंगे. तो फर्स्ट केस में P point lies between A and B और सेकंड और थर्ड केस में P is not between A and B. ये केस को बोलते हैं इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट AB बाय पॉइंट B और सेकंड और थर्ड केस को बोलते हैं डिवीजन ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट AB बाय पॉइंट B. तो गिव द हेडिंग internal division of line segment AB by P. Internal division of line segment AB by P. तो क्या याद रखोगे आप लोग? आपको याद होना चाहिए पूरा अच्छे तरीके से. क्या कंडीशन आनी चाहिए? If A dash, B dash, B, then we say point P divides. कौन डिवाइड कर रहा है? Point P divides line segment AB from A side. Divides line segment point P divides line segment AB from A side internally in the ratio K is to 1. In the ratio K is to 1. ये याद रखना है. If A dash, P dash, B, if A dash, P dash, B, then we say point P divides line segment AB from A side. If A dash, P dash, B, if A dash, P dash, B, then we say point P divides. Then we say point P divides line segment AB from A side internally in the ratio K is to 1. और उधर को K क्या आएगा? हाँ, इधर याद रखने का. कौन डिवाइड करता है? इधर डिवाइड कर रहा है. इधर कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है? इधर पॉइंट P डिवाइड कर रहा है. पॉइंट P डिवाइड्स. सिंस P डिवाइड्स तो डिवाइडिंग पॉइंट हो जाएगा. ये आपको याद रखना है. डिवाइडिंग पॉइंट P हो गया. डिवाइडिंग पॉइंट P क्या हो जाएगा? इधर डिवाइडिंग पॉइंट. और डिवाइडिंग पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x y. ओके, जस्ट 1 मिनट. पहले मैं रेशियो लिख देता हूं. If A dash, P dash, B, then we say point P divides line segment AB from A side internally in the ratio K is to 1. तो आपको क्या याद रखना है? हाँ, तो इधर रेशियो जो K है वो क्या होगा? रेशियो which is K is to 1 मतलब K वो क्या आएगा? AP upon PB. ये याद रखना है. प्लस क्या है? AP upon PB. So therefore K क्या है? AP upon PB. और इधर K का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा. K का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा. ये आपको याद रखना है. और इधर कौन डिवाइड कर रहा है? इंटरनली. इधर डिवाइड कर रहा है B से पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB. So therefore here T हो जाएगा for A dash
P dash B मतलब इंटरनल डिवीजन रेशियो जो K है वो कैसा है AP अपॉन PB और वो पॉजिटिव ही है। इंटरनल डिवीजन के लिए रेशियो हमेशा पॉजिटिव आता है। अब कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है P डिवाइड्स, तो P जो है वो हो जाएगा डिवाइडिंग पॉइंट और P को डिवाइडिंग पॉइंट को हमेशा याद रखने का फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट में P उसको डिवाइडिंग पॉइंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय xy फ्रॉम A साइड इसको अंडरलाइन करने का और P डिवाइड्स इसको अंडरलाइन करने का, तो A हो जाएगा इनिशियल पॉइंट फ्रॉम व्हिच साइड A साइड, तो A हो जाएगा इनिशियल पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा x1 y1 होते हैं। तो बचा कौन सा पॉइंट B, तो B हो गया एंड पॉइंट और एंड पॉइंट इज डिनोटेड बाय फॉर्मूला में x2 y2 और रेशियो क्या है इधर, रेशियो क्या है इधर, रेशियो है K, रेशियो इज K which point divides for A dash P dash B, if A dash P dash B then we say if A dash P dash B then we say P divides, तो P क्या हो गया x1 then P divides line segment AB from A side, A क्या हो गया initial point, so A x1 y1, B क्या हो गया x2 y2 क्योंकि वो एंड पॉइंट है in the ratio K is to 1, so ratio है इधर रेशियो क्या था K which is AB upon PB, A greater than 0, तो इन सबको कनेक्ट करता हुआ फॉर्मूला x y x1 y1 x2 y2 और K को कनेक्ट करता हुआ फॉर्मूला आपको पहले से पता है, 3D में मैंने किया था, 2D में करना है खाली उसका x कोऑर्डिनेट x will be K x2 plus x1 upon K plus 1 और y कोऑर्डिनेट ऑफ P y will be K y2 plus y1 upon K plus 1, ठीक है इजीली। P डिवाइडिंग पॉइंट Pxy, A इनिशियल पॉइंट Kx मतलब B एंड पॉइंट B x2 y2 रेशियो K AB upon PB, K पॉजिटिव, तो फॉर्मूला x इक्वल टू Kx2 plus x1 upon K plus 1 y is equal to Ky2 plus 1 upon K plus 1, और दूसरा आपको याद रखना है ये तो रेशियो K है AP upon PB इंटरनल डिवीजन के लिए रेशियो क्या है, इंटरनल डिवीजन के लिए रेशियो क्या है AP upon PB, K डिवाइड करता है PB को, तो याद रखने का रेशियो कैसे मिलता है इनिशियल पॉइंट टू डिवाइडिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू डिवाइडिंग पॉइंट अपॉन डिवाइडिंग पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन K क्या है AP अपॉन PB, तो AP क्या है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू डिवाइडिंग पॉइंट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन डिवाइडिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, और दूसरा आप देखो AP और PB का डायरेक्शन कैसा है, AP टुवर्ड्स राइट है PB भी टुवर्ड्स राइट है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए K इज AP अपॉन PB मतलब प्लस में, ये आपको याद रखना है, ठीक है ये हो गया। सो और A dash P dash B ये हो गया इंटरनल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में लिखते हैं, अब एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में लिखते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में लिखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, इफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट AB बाय पॉइंट P, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट AB बाय पॉइंट P, उसका मतलब P A और B के बीच नहीं आएगा, उसका मतलब if P dash A dash B मतलब P A के पहले होना चाहिए और A dash B dash P मतलब P B के बाद होना चाहिए, then we say कौन डिवाइड करेगा, then we say point P divides कौन सी लाइन सेगमेंट AB, पर कैसे एक्सटर्नली divides line segment AB externally from A side, then point P divides line segment AB from A side externally, okay हम ऐसे लिखते हैं, then we say point P divides line segment AB from A side पर कैसा externally in the ratio क्या K is to 1 in the ratio K is to 1, ये आपको याद रखना है, मतलब एक्सटर्नल डिवीजन में दो केस कौन से होंगे, एक्सटर्नल डिवीजन में दो केस होंगे, P dash A dash B पहला केस होगा, P dash A dash B, सेकंड केस क्या होगा A dash B dash P, ये दोनों केस में डिवीजन तो एक्सटर्नल ही है, तो ये ड्रॉ करो, P dash A dash B, P dash A dash
बी और ए डैश बी डैश में क्या होगा, ए डैश बी डैश बी। ठीक है, ये भी एक्सटर्नल डिवीजन का केस है, ये भी एक्सटर्नल डिवीजन का केस है। इसमें रेशियो क्या था, k इज इक्वल टू उसमें रेशियो क्या था, उसमें रेशियो था AP अपॉन PB, तो इंटरनल में प्लस AP अपॉन PB, तो एक्सटर्नल में क्या होना चाहिए माइनस AP अपॉन PB। इधर भी k क्या आएगा माइनस AP अपॉन PB। और ये आपको याद रखना है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए रेशियो का वैल्यू लेस देन 0 होगा, रेशियो का वैल्यू लेस देन 0 होगा। थोड़ा और डिटेल में इन दोनों के बारे में समझाऊंगा, पर पहले एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट KB by point P। So if P dash A dash B or A dash B dash B, then we say point P divides, then we say point divide करता है, then point P divides from line segment AB from A side externally in the ratio K is to 1। ये आपको याद रखना है। तो P dash A dash B उसमें भी K minus AP upon PB और A dash B dash B एक्सटर्नल डिवीजन K minus AP upon PB रेशियो, और रेशियो दोनों केस में ये केस होगा और ये केस होगा। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए रेशियो का वैल्यू नेगेटिव होगा, इंटरनल डिवीजन के लिए रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव होगा। आपको याद रखना है A dash B में AP वेक्टर और PB वेक्टर का सेम डायरेक्शन था। इधर आप देखो AP लेफ्ट में है और PB राइट में है। AP वेक्टर अगर मैं रे AP लेफ्ट में है, PB राइट में है, तो ऑपोजिट में है, इसलिए माइनस। ये भी एक लॉजिक है। इधर आप देखो AP इज टुवर्ड्स राइट और PB is towards left in case, that's why also minus plus। समझ गए? That is the external division of line segment AB by P। पर अब उसमें एक्सटर्नल डिवीजन में ठीक है रेशियो नेगेटिव आता है, पर नेगेटिव के लिए भी हम लोग का थोड़ा स्पेशल केस होता है। अगर आपको याद होना चाहिए तो पहले P dash A dash B के बारे में हम लिखेंगे, P dash A dash B, P dash A dash B, P dash A dash B है, ये एक्सटर्नल डिवीजन है तो आपको पता ही है, कोई डिटेलिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। P dash A dash B here P divides line segment AB from A side externally in ratio K is to 1। तो here रेशियो जो है वो क्या था K, और वो क्या था माइनस AP अपॉन B, और वो रेशियो K लेस देन 0। पर आपको याद रखना है कि फॉर P dash A dash B, आपको याद रखना है फॉर P dash A dash B, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था, फॉर P dash A dash B रेशियो का वैल्यू -1 और 0 के बीच में आता है। फॉर P dash A dash B, for P dash A dash B, ये मैंने पहले समझाया, पर ऑलरेडी दिस वी हैव डन इन 3D। क्या for P dash A dash B where रेशियो K क्या था -AP अपॉन P, we have, ये आपको याद रखना है, we have -1 is less than K is less than 0। नेगेटिव ही होगा पर -1 और 0 के बीच में होगा। और P dash A dash B K का वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगा, ये आपको याद रखना है। फिर कौन डिवाइड कर रहा है, सो P क्या हो गया डिवाइडिंग पॉइंट, सो P हो गया डिवाइडिंग पॉइंट, P हो गया डिवाइडिंग पॉइंट, और डिवाइडिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय xy। A हो जाएगा इनिशियल पॉइंट फ्रॉम A साइड है, और A इज डिनोटेड बाय x1 y1। B हो जाएगा एंड पॉइंट, ये आपको 2-3 बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इधर ही लिख देता हूं, आई विल नॉट बी रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। सो B हो गया एंड पॉइंट। उसका मतलब हमारे पास 3 पॉइंट्स कौन-कौन से हैं, हमारे पास 3 पॉइंट्स कौन-कौन से हैं, therefore P divides for P dash A dash B, for P dash A dash B, P divides externally, so P xy from A side, so K x1 y1 B x2 y2, and ratio क्या है एक्सटर्नली डिवाइड विद द रेशियो K is to 1 where K is -AP upon PB, पर -1 less than K less than 0। तो क्या कनेक्शन है xy x1 y1 x2 y2 और रेशियो K का सेम फॉर्मूला आएगा जो हमने 3D में किया, और इंटरनल डिवीजन के लिए क्या याद रखने का, x कोऑर्डिनेट ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट इज इक्वल टू K, x is equal to kx2 plus x1 upon K plus 1
y coordinate of dividing point is ratio k into y2 plus y1 upon k plus 1. आपको याद रखना है, फॉर्मूला वही रहेगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट, पर आपको पता होना चाहिए डिवाइडिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय x1, इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय x1, एंड पॉइंट डिनोटेड बाय y, x2 y2. Initial point divided by initial point denoted by x1 y1. इस फॉर्मूला में आपको याद रखना है, इस फॉर्मूला में आपको याद रखना है कि xy are the coordinates of dividing point, x1 y1 are coordinates of initial point, x2 y2 are coordinates of end point. Ratio is k, they are connected, x equal to kx2 plus x1 upon k plus 1, y equal to ky2 plus y1 upon k plus 1. थर्ड केस जो था वो था हमारा a dash b dash p. ओके, एक्सटर्नल डिवीजन का सेकंड केस था, तो मैं खाली इसे ड्रॉ कर देता हूं. सेम चीज आप लिखो और ट्राई करो, रिकॉल करो. ओके, रेशियो का एग्जैक्ट वैल्यू क्या था? हियर पॉइंट p डिवाइड्स, हियर पॉइंट p डिवाइड्स, हियर पॉइंट p डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम A साइड, कैसे एक्सटर्नली in ratio k:1. और आपको पता था कि वो जो रेशियो है k, वो हमने क्या किया था? रेशियो क्या था? माइनस AP अपॉन PB, माइनस AP अपॉन PB, और वो रेशियो का वैल्यू नेगेटिव था. और प्रिसाइसली वो क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि फॉर a dash b dash p where k ratio is minus AP upon PB, where ratio is equal to k is minus AP upon PB. नोट डाउन, वो नेगेटिव है और वो k का वैल्यू क्या आना चाहिए? लेस देन माइनस, k का वैल्यू आना चाहिए लेस देन -1. ये याद आपको रखना है. फॉर a dash b dash p, फॉर a dash b dash p, k लेस देन -1. और आपको याद रखिएगा, अगर ये रेशियो आप देखते हो, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए k क्या होता है? -AP upon PB, और इंटरनल डिवीजन के लिए क्या होता है? AP upon PB. तो एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस AP अपॉन PB, तब देखो P दो बार आता है, तो P डिवाइडिंग पॉइंट. और ऊपर वाला जो पॉइंट है डिवाइडिंग पॉइंट P है, ऊपर वाला कौन सा पॉइंट रहेगा? A, तो A इनिशियल पॉइंट, और इधर डिवाइडिंग पॉइंट के बाजू में पॉइंट B, तो B एंड पॉइंट. एक्सटर्नल डिवीजन में K का वैल्यू क्या आता है? माइनस ऑफ AP अपॉन PB. कौन सा पॉइंट रिपीट कर रहा है रेशियो में? P. सो P क्या हो गया? डिवाइडिंग पॉइंट. P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम A साइड. तो P रिपीट कर रहा है रेशियो में, तो वो डिवाइडिंग पॉइंट लेने का, और ऊपर A आएगा, A आता है P के साथ डिवाइडिंग पॉइंट के साथ, तो वो इनिशियल पॉइंट और ये एंड पॉइंट. तो ये लिख लिया. अब फॉर A dash therefore, अब हमारे पास ये आ गया. अब इसके बाद हमने कौन डिवाइड करता है? इधर पॉइंट P डिवाइड करता है, तो P क्या हो जाएगा? therefore इधर P is dividing point, P is the dividing point, because P divides, तो उसको मैं लास्ट टाइम लिख रहे हैं dividing denoted by xy a from a side. so initial point हो जाएगा, और initial point को डिनोट करते हैं coordinates by x1 y1. P is the dividing point, so dividing point is denoted by coordinates xy. A is the initial point, so it is denoted by coordinates x2 y2. B हो गया हमारा end point, तो उसके coordinates हो जाएंगे x2 y2. so यहाँ पे हमारे पास for a dash, so therefore for a dash b dash p, for a dash b dash p, P divides, so P xy हो जाएगा. P divides line segment AB from A side, from A side. A हो गया initial point x1 y1, externally in the ratio k:1, so and B हो जाएगा, B हो जाएगा end point, वो हो जाएगा x2 y2, एंड रेशियो क्या आता है? रेशियो आता है k minus AP upon PB. नो डाउट k is negative, पर हाँ याद रखने का, इधर k is less than -1, k is less than -1. so what is the connection between the ratio k, then you can say x1 y1, x2 y2, and x1. connection is, which you have already written twice, x is kx2 plus x1 upon k plus 1, y is k y2 plus y1 upon k plus 1. फिनिश्ड. तो ये आपको याद रखना है.
ये आपको याद रखना है। ये तीनों केस हो गए और तीनों केस के बारे में अब हम डिटेल में ऑलरेडी लिख चुके हैं। और अब आपको याद रखना है कि अगर वो कैसे भी डिवाइड करें, इंटरनली और एक्सटर्नली, दोनों केस में फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन हो या एक्सटर्नल डिवीजन हो, फॉर्मूला सेम ही रहता है। तीनों केस में हम लिख चुके हैं, तो नो नीड टू रिपीट इट अगेन, no need to repeat it again. That part is very clear. That part is very clear. So done. Now this is finished. So that finishes the portion of division of a line segment. That finishes the portion of division of a line segment by point P. Okay. Now एक नया टॉपिक हम करते हैं जो है just 1 minute. Some water. Then I will continue. ओके, आपको याद रखना है नेक्स्ट टॉपिक ओके, या फिर इसको अगर मैं खाली ओके, आई विल नॉट सॉल्व दिस, लेट मी सॉल्व वन ऑफ द एक कोई इलस्ट्रेशन अगर मुझे चेक करना है। हाँ, यूजिंग सेक्शन ओके, तो more point, small point is there which I can give you. Okay, no. Okay, just write slope of a line. Slope of a line. ठीक है, slope of a line लिखो। स्लोप ऑफ अ लाइन इन R2। याद रखने का स्लोप ऑफ लाइन के लिए सिंबल होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन के लिए जनरल सिंबल m यूज होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन का सिंबल m होता है। तो स्लोप लेट m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB, या स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिनोटेड बाय m, स्लोप ऑफ अ लाइन is represented by छोटा लेटर m. Let m is equal to, suppose a और b two distinct points हैं, let a x1 y1 and b x2 y2 be two distinct points of two-dimensional or distinct points हैं, तो line AB is formed. So and let m is equal to slope of line AB. तो m कैसा आएगा? m slope of line AB, therefore slope of line AB, m is equal to slope of line AB, और वो m आएगा difference in slope of line AB, जो है m, वो आएगा difference in y coordinates upon difference in y coordinates upon difference in x coordinates. Difference in x coordinates. Difference in x coordinates. Difference in x coordinates. So आपको याद रखना है what is slope of a line. अगर ax1 y1 है और bx2 y2 है, दो पॉइंट्स दिए हैं, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो लाइन AB will be formed. So m is slope of line AB. तो slope of line AB जो m है वो कितना आएगा? Difference in y coordinates upon difference in x coordinates. नोट क्या याद रखने का? Difference must be taken. Difference in coordinates. Coordinates for the x coordinates or y coordinates. Difference in coordinates must be taken. Must be taken in same order. Must be taken in same order. Must be taken in same order. तो क्या याद रखने for ax1 y1 and bx2 y2, where दोनों पॉइंट्स डिस्टिंक्ट है ना, तो स्लोप of line AB, slope of
स्लोप m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB क्या है, मैंने क्या बोला, डिफरेंस टू बी टेकन इन द सेम ऑर्डर, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स, मतलब y1 माइनस y2 अपॉन क्या आना चाहिए, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। और दूसरा क्या आ सकता है, अगर मैं y2 माइनस y1 करता हूं तो क्या आना चाहिए, x2 माइनस x1, और हां x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1 0 नहीं होना चाहिए। हियर x1, here slope is defined, slope of line AB जो m है is defined, कब वो डिफाइन कब होगा, वो कब डिफाइन होगा, जब x1 minus x2 is not equal to 0, defined for x1 minus x2 is not equal to 0 और x2 minus x1 is not equal to 0 is defined for x1 is not equal to x2, मतलब a और b के x कोऑर्डिनेट सेम नहीं होने चाहिए। अगर a और b के x कोऑर्डिनेट सेम है तो स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपको खाली इतना याद रखना है, अभी तो मैंने आपको सिखाया कि स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होता है, अगर a और b दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, खाली इतना याद रखना है, फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A x1 y1 and b x2 y2 and b x2 y2, slope of line AB will be formed क्योंकि वो दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। स्लोप ऑफ लाइन AB उसका सिंबल क्या होता है, m, और वो फॉर्मूला क्या आएगा, अगर मैं रखता हूं y1 माइनस y2, y1 माइनस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, और दूसरा उसी का फॉर्मूला, अगर मैं y2 माइनस y1 करता हूं तो उसको मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या दो बार अलग से याद रखें, ये लास्ट टॉपिक की है, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB अगर मैं लिखता हूं m तो वो हो सकता है y1 माइनस y2 तो अपॉन डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स, अगर मैंने y1 माइनस y2 रखा है अपॉन कैसे मिलना चाहिए, x1 माइनस x2, ठीक है। ऑल्सो सिमिलरली स्लोप ऑफ, कोई स्टूडेंट बोले सर मेरे को ऐसे नहीं करना है, आई वांट टू गो इन अनदर वे, सेम आंसर आएगा, स्लोप ऑफ लाइन AB m, अगर मैं स्लोप का डेफिनेशन डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स, सो y2 माइनस y1 अगर मैं रखता हूं तो नीचे क्या आना चाहिए, x2 माइनस x1, और हां ये स्लोप कब डिफाइंड होगा, जब x1 minus x2 is not equal to 0, here x1 minus x2 is not equal to 0 और इधर x2 minus x1 is not equal to 0, तभी ये स्लोप एग्जिस्ट करेगा। और अगर स्लोप एग्जिस्ट इसके लिए नहीं करेगा, स्लोप जीरो क्या होगा, स्लोप रियल नंबर है, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। मैंने यहाँ पे खाली स्लोप ऑफ लाइन AB का एक ब्रीफ आपको दे दिया, एज सिंपल एज दैट, समझ में आ गया। और स्लोप ऑफ लाइन AB एग्जिस्ट फॉर A x1 y1 and B x2 y2 where A is not equal to B, where A is not equal to B, मतलब वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है। स्लोप ऑफ लाइन AB m क्या कर रखता हूँ, y1 minus y2 upon x1 minus x2 between y2 minus y1 upon x2 minus x1, या स्लोप ऑफ लाइन AB is equal to m एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB जो m था एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट फॉर उसके x1 minus x2 not equal to 0 या x2 minus x1 not equal to 0, मतलब x1 is not equal to x2, तभी स्लोप एग्जिस्ट करेगा। अगर x1 equal to x2 है तो उसका स्लोप एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब स्लोप अनडिफाइंड होगा, तब क्या क्या होगा वो सब डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो अच्छे तरीके से इसको आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, और सारी थियरी आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको एक्सरसाइज के सम्स आएंगे। अगर आपको एक थियरी नहीं आती है तो आपको एक भी सम नहीं आएगा। ओके, सो वर्क हार्ड, प्रैक्टिस मोर, टेक केयर एंड स्टडी, डोंट वेस्ट टाइम। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।